हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मनसे मैथ। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फॉर द एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री for 6 t ratios. What are the 6 t ratio? First is the sin theta, cos theta, tan theta, cosecant theta, secant theta and cot theta. Okay, you should know the relationship between sine and cosecant. Okay, what is the relationship between these two? Okay, and cos and secant, tan and cot. Okay, which type of relation is there in between these two pair of t ratios? These two are the reciprocals of each other. Okay, sine and cosecant are reciprocal of each other. We can say that sine theta is equal to 1 by cosecant theta, and cosecant theta you can write 1 by sine theta. These two t ratios are reciprocal of each other. Okay, similarly cos and secant, these two ratios are reciprocal of each other. That means we can write cos theta as 1 by secant theta and secant theta as 1 by cos theta. Similarly tan and cot are reciprocals of each other. Okay, means tan theta you can write it as 1 by cot theta and cot theta can be written as 1 by tan theta, and tan and cot you can write it in sine and cos form also. Okay, so how you will get tan theta? After dividing sine theta by cos theta, when you will divide sine theta by cos theta you will have tan theta, and we know that cot theta is reciprocal of tan theta na. So what would be cot theta? What would be its reciprocal? It will be equal to cos theta upon sine theta. Okay, and one more, something non-zero upon 0 is infinity. You can write it not defined also. Okay, any non-zero value upon 0. Okay, here we will use this as 1 by 0. You will write 1 by 0 as infinity. This is a symbol of infinity, or instead of this you can write not defined also. Okay, means reciprocal. 1 by 0 means reciprocal of 0. Reciprocal of 0 is infinity. Okay, so reciprocal of infinity will be 0. That means something non-zero upon infinity is 0. अगर डिनोमिनेटर में इंफिनिटी है, न्यूमरेटर में कुछ भी नॉन जीरो वैल्यू है, ठीक है, देन इट विल बी इक्वल टू 0. Okay, so means reciprocal of infinity will be 0. Means 0 and infinity. Okay, 0 and infinity are reciprocals of each other. ठीक है, ये टेबल की बॉक्सेस फिल करने से पहले ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. टेबल काफी इजी है अगर ये चीजें, ये बेसिस आपके क्लियर हैं. ओके, साइन एंड कोसेकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. हम साइन के बॉक्सेस निकालेंगे, उसमें जो वैल्यूज आ गई उनका रेसिप्रोकल लिखा जाएगा कोसेकेंट के कॉरस्पॉन्डिंग. ओके, कोस एंड सीकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कोस एंड सीकेंट. ओके, वी विल यूज दीज हियर. ओके, फॉर द टेबल आई विल यूज these three relations of the t ratios. Okay, so जो भी यहाँ पे cos के corresponding लिखी होंगी वैल्यूज, उन वैल्यूज का रेसिप्रोकल होगी अपनी सीकेंट के कॉरस्पॉन्डिंग लिखते जाना है. यहाँ पे कोड की जो भी अपनी वैल्यूज लिखी होंगी उनका रेसिप्रोकल कोड के कॉरस्पॉन्डिंग लिखी जाना है. सारा वर्क है ये फिल कर लो, पहले वाला सारा टेबल उसी से निकल जाएगा फर्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू से. ठीक है, फर्स्ट रो की बॉक्सेस की वैल्यू से. और फर्स्ट वाला भी कैसे फिल करना है उसका भी है मेथड. तो उसके लिए ये वैल्यू सारी फिल करने के लिए आप रफली यहाँ पे लिखोगे स्क्वायर रूट
by 4, square root by 4, square root by 4, square root by 4, square root by 4. ओके, सब में सेम है ना, सब में हमने ये एक्सप्रेशन सेम लिखा ना. अब न्यूमरेटर में क्या लिखना है? न्यूमरेटर स्टार्ट करना है 0 से. 0 1 2 3 4. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके जो भी आता है यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइन के कॉरस्पॉन्डिंग हमने लिखते जाना है. 0 अपॉन समथिंग 0 एंड 0 का स्क्वायर रूट 0 इटसेल्फ. ओके, यहाँ पे 1/4 का स्क्वायर रूट है, मींस 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2. ओके, हियर 2/4 है ना, इसकी कटिंग करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 1/2. 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट 2. हियर स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 4 कितना होगा? 2. क्योंकि यहाँ पे 4 के साथ 4 कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा? 1. 1 का स्क्वायर रूट क्या होना है? 1. ठीक है, इसका डिवाइड करने के बाद अगर कुछ कटिंग पॉसिबल है, कटिंग करने के बाद स्क्वायर रूट का जो भी आपके पास एक्सप्रेशन, जो भी आंसर आता है वो यहाँ पे लिखा है. ठीक है, 0/4 स्क्वायर रूट 0, 1/4 स्क्वायर रूट 1/2. ठीक है, 2/4 दैट मीन्स 1/2, 1/2 स्क्वायर रूट 1/√2, 3/4 स्क्वायर रूट 3/2, 4/4 मीन्स 4 के साथ 4 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? 1. 1 का स्क्वायर रूट 1. ओके, अब कोस के लिए उल्टा शुरू कर देना, यहां से लिखना 1 स्क्वायर रूट 3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0. इसी का उल्टा लिखना शुरू कर देना. ठीक है, पहले 1, देन स्क्वायर रूट 3/2, then 1/√2, 1/2 and 0. 1 square root 3/2, 1/2, 1 square root 3/2, 1/√2, 1/2 and 0. ओके, सो 10 के लिए ये वाला, 10 के लिए हम ये वाला यूज करेंगे. ठीक है, मीन्स 10 कैसे आएगा? साइन की वैल्यूज को कोस के साथ डिवाइड करके. ठीक है, जो भी साइन की वैल्यू है मीन्स 0/1, इसको आप वो डिवाइड की लाइन की तरह ही कंसिडर कर लेना है. ये बॉक्स की जो लाइन है ना, ठीक है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, मीन्स इस लाइन को आप माइंड में अज्यूम कर रहे हो, ये डिवाइड की लाइन है. ओके, फॉर दीज वैल्यूज 0/1 0. ठीक है, इन दो वैल्यूज को डिवाइड करोगे, डिनोमिनेटर सेम है, दोनों फ्रैक्शनल में ना, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर कैंसिल आउट होके आपके पास क्या बचेगा? 1/√3. सी हियर, मीन्स इसको इसके साथ डिवाइड किया. ठीक है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ना, साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी? 1/2 अपॉन स्क्वायर रूट 3/2. ओके, सो डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो, वो कैंसिल आउट होके क्या बच जाना है? 1/√3. सिमिलर इन दोनों की डिवाइड करोगे, दोनों सेम ही है ना, 1/√2, 1/√2, सेम वैल्यू, दो वैल्यूज को डिवाइड करते हो 1 आ जाना है. ओके, इन दोनों को डिवाइड करोगे यहाँ पे भी. ठीक है, स्क्वायर रूट 3/2 अपॉन 1/2. ठीक है, न्यूमरेटर की वैल्यू एंड डिनोमिनेटर की वैल्यू दोनों ही फ्रैक्शन में, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, आप सीधे कैंसिल आउट कर सकते हो. अदरवाइज अगर आपको ये नहीं पता चल रहा तो ऐसे भी देख सकते हो, इसको 1/2 के साथ डिवाइड किया. ओके, मीन्स जो डिवाइड वाला मीन्स √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2. ओके, इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा पिछली वाली वैल्यू का, √3/2 इंटू 2/1. 2 के 2 साथ 2 कैंसिल आउट करके क्या बचेगा यहाँ पे? स्क्वायर रूट 3. 1/0, 1/0 infinity, or you can write not defined. 1/0 means the reciprocal of 0. Okay, so here see the cosecant. Cosecant is reciprocal of sine. ठीक है, cosecant is reciprocal of sine, means we will take the reciprocal of all these values. 0's reciprocal is infinity. ठीक है, reciprocal of 0 is infinity. 1/2 reciprocal 2/1, no need to write 1 as a denominator. ठीक है, 1/√2, √2, no need to write, if the denominator is 1, no need to write the denominator if it is 1. Okay, reciprocal of this will be 2/√3. 1's reciprocal is 1. Okay, so what about this? Secant is reciprocal of cos. Cos की वैल्यूज का रेसिप्रोकल हमने यहाँ पे लिख देना. ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग बॉक्सेस में. ठीक है, बिकॉज cos एंड secant both are reciprocals of
each other. Okay, so यहाँ पे secant के लिखने के लिए cos की वैल्यूज का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/2 का रेसिप्रोकल √2. ओके, और इसका रेसिप्रोकल 2, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी. ठीक है, यहां से दिखा है. बाकी ये भी उल्टा चला है, अगर यहां से टेबल कंप्लीट करना चाहते हो, जैसे साइन एंड कोस में इन दोनों का रिलेशन ना उल्टा शुरू कर दिया था, यहां से भी ये उल्टा शुरू कर दोगे तो ये सेकंड का आ जाना है. ओके, कोट इज रेसिप्रोकल ऑफ tan. tan की वैल्यूज का रेसिप्रोकल हो, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, 1/√3 का √3 upon 1. No need to write denominator if it is 1, quite obvious. No denominator means it's 1. 1's reciprocal 1. ठीक है, √3 reciprocal 1/√3, and infinity reciprocal of infinity is 0. So this table is completed. Hope whatever I have explained to you, that is clear to you. Thanks for watching the video.